Hello everyone, this is the third lecture of mole concept and stoichiometry, and in this video we are going to discuss some numerical problems related to mole concept and Avogadro's law. So the numericals that we are going to discuss today are very important numericals, and there is very high chance that such kind of numericals may come in exam. So let's see first question, that is, under the same conditions of temperature and pressure, you collect 2 liter of carbon dioxide, 3 liter of chlorine, 5 liter of hydrogen gas, 4 liter of nitrogen gas and 1 liter of sulfur dioxide. So in which gas sample there will be the greatest number of molecules? So we have to remember the Avogadro's law. What does Avogadro's law say? That if the temperature and pressure, the conditions like temperature and pressure are same, then the equal number of molecules contain equal volume, or equal volumes have equal number of molecules. It means the number of molecules and volume are proportional to each other. So remember, volume is directly proportional to the number of molecules. So from Avogadro's law, volume depend on number of molecules. It does not depend on the nature of gas, means it doesn't matter whether it is carbon dioxide or chlorine gas or hydrogen gas or nitrogen gas. The volume will always depend on the number of molecules. So from here we can say that volume depends on the number of molecules. So the gas which has highest volume will have highest number of molecules. So the question is the greatest number of molecules. So which has highest volume? The hydrogen gas. Hydrogen gas has highest volume, 5 liters. Then it will have highest number of molecules. So it will be hydrogen gas. The second question is the least number of molecules. Again, the volume depends on the number of molecules. So the gas which will have least volume will also have least number of molecules. So you can see the least number of molecules, which gas have least number of molecules, that is sulfur dioxide, because it has the volume of 1 liter. So the answer is SO2. So hope you have understood this question. The Avogadro's law. Avogadro's law क्या कहता है कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर गैसेस का सेम है, तो अगर उनके वॉल्यूम सेम होंगे तो उनमें भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे. तो इसका मतलब वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने ज़्यादा होंगे वॉल्यूम उतना ज़्यादा होगा, या फिर वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतने ही ज़्यादा होंगे. तो बस आपको यही रूल अप्लाई करना है और देखेंगे, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर सेम है तो जिसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा होंगे, जिसका वॉल्यूम सबसे कम होगा उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सबसे कम होंगे. Second question is, find the total percentage of oxygen in magnesium nitrate crystals, that is MgNO3 whole twice dot 6H2. So what do you have to find? The percentage of oxygen. So first of all we have to find the molar mass. Molar mass of MgNO3 whole twice dot 6H2. So we have discussed molar mass in previous video. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आप प्लीज़ पिछले 2 वीडियोस ज़रूर देख लें पहले, क्योंकि वहाँ पे हमने मोलर मास डिस्कस किया था कि हम मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो इफ़ यू डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट द मोलर मास, वी कैलकुलेट द मोलर मास इन द सेम वे इन विच वी कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास. द ओनली डिफरेंस इज मॉलिक्यूलर मास is measured in AMU while molar mass is measured in grams per mole. तो molar mass of MgNO3.6H2 वो क्या हो जाएगा? That is मैग्नीशियम कितना है? 24 प्लस नाइट्रोजन होल ट्वाइस, that is 14 into 2 plus now oxygen, that is 3 into 2, 6 oxygen here and 6 oxygen here, so total 12 oxygen. 12 into what is the mass of oxygen? 16 plus then hydrogen, that is 12 atoms of hydrogen. So 12 into 1. So what will be the molar mass? That will be 24 plus 28 plus 12 into 16, that is equal to
192 plus 12, and this is equal to 256 gram. So what is the molar mass of crystals of magnesium nitrate? That is 256 gram. Now we have to calculate the percentage composition of oxygen. So total percentage of oxygen. So what is the total mass of oxygen? That is 12 into 16. So percentage of oxygen क्या हो जाएगा? That will be 192 divided by total 256 into 100. तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? मास ऑफ ऑक्सीजन वो कितना था? 192 डिवाइडेड बाय टोटल मास और मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट क्रिस्टल, दैट इज 256 into 100. तो आप जरा जल्दी से मुझे आंसर बताइए, इसका आंसर क्या आएगा? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the mass of nitrogen in 1000 kg of urea? The formula of urea is NH2CO NH2. So first of all we have to calculate the molar mass of urea. That is equal to, what is the mass of nitrogen? That is 2 into 14 plus, because there are 2 nitrogen atoms, then hydrogen 2 plus 2, that is 4 into 1 plus 1 carbon, that is 12, plus 1 oxygen, that is 16. So 2 into 14, that is 28, plus 4, that is 32, plus 12, that is 44, plus 16, that is equal to 60. So what is the molar mass of urea? That is 60 gram. Now you can see the molar mass of urea is 60 gram, and out of this 60 gram there is 28 gram nitrogen. So you can say that 60 gram of urea contain how much? 28 gram nitrogen. तो आपको कुछ नहीं, सिर्फ यूनिटरी मेथड ध्यान में रखना है. सो 1 gram of urea contains how much gram of nitrogen? That will be 28 by 60 gram of nitrogen. But हमको क्या पूछा है? 1000 kg of urea. So we can say 1000 kg of urea contains how much? 28 by 60 into 1000. लेकिन यहाँ पे तो ग्राम में था और यहाँ पे केजी में है, तो इसमें आंसर भी क्या आएगा आपका? केजी ऑफ नाइट्रोजन. तो ये कितना हुआ? जरा फिर से मुझे आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, water can split into hydrogen and oxygen under suitable conditions. The equation representing the change is 2H2O gives 2H2 plus O2. If a given experiment results in 2500 centimeter cube of hydrogen being produced, what volume of oxygen is liberated at same time under similar temperature and pressure? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन है गेल-ल्यूसेक लॉ से. तो आपको गेल-ल्यूसेक लॉ ध्यान में रखना है और वो हमने डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में. अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं. तो व्हाट डज द गेल-ल्यूसेक लॉ से? इट सेज दैट इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर सेम देन द रेशियो ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज अ सिंपल होल नंबर रेशियो. तो यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो क्या है? लिक्विड है. दिस इज नॉट अ गैस. तो गैसेस कौन है? केवल प्रोडक्ट्स हैं. तो इनका जो रेशियो होगा दैट इज 2:1. सो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन? तो वो किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट. तो कोफिशिएंट्स क्या है इसके? 2 और ऑक्सीजन का 1. सो 2/1. नाउ द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड दैट इज 2500. सो 2500 by volume of oxygen. So let's say let volume of oxygen be x centimeter cube. So 2500 by x equal to 2/1, or you can say 2x equal to 2500 or x equal to 1250. It means volume of oxygen liberated is equal to
1250 centimeter cube. So hope you have understood this question. The next question is, if a crop of wheat removes 20 kg of nitrogen per hectare of soil, what mass of fertilizer, calcium nitrate, that is CaNO3 whole twice, would be required to replace nitrogen in 10 hectare field? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर आपके पास जो व्हीट है वो 20 kg नाइट्रोजन रिमूव करता है 1 हेक्टेयर फील्ड से, तो आपको कितना कैल्शियम नाइट्रेट चाहिए होगा, किसके लिए, 10 हेक्टेयर फील्ड के लिए, टू रिप्लेस द नाइट्रोजन. तो क्योंकि अगर हम 10 हेक्टेयर फील्ड में व्हीट प्रोड्यूस करते हैं तो कितना नाइट्रोजन रिप्लेस करेगा, क्योंकि 1 हेक्टेयर में 20 kg रिप्लेस करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन replaced in 10 hectare, that will be equal to, 1 हेक्टेयर में 20 होता है तो 10 में कितना हो जाएगा, 20 इंटू 10, दैट विल बी 200 kg. तो 200 kg तो नाइट्रोजन रिप्लेस होगा. अब 200 kg नाइट्रोजन के लिए हमको कितना कैल्शियम नाइट्रेट चाहिए होगा, तो कितना कैल्शियम नाइट्रेट चाहिए होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट. सो molar mass of calcium nitrate CaNO3 whole twice, that is equal to mass of calcium, that is 40, plus nitrogen, that is 14 into 2, plus oxygen, that is 16 into 6, because 3 into 2, that is 6. So 40 plus 14 into 2, that is 28, plus 16 into 6, that is 96. So 40 plus 28, that is 68, plus 96, that is equal to 164 gram. Now in this 164 gram, what is the mass of nitrogen, that is 28 gram. So you can say 28 gram nitrogen requires 164 gram of calcium nitrate. So how much gram of nitrogen is to be replaced, that is 200, or it is 200 kg. So 200 kg nitrogen requires how much, 164 upon 28, because it is required for 1 ग्राम. अगर 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए 164 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट चाहिए, तो 1 ग्राम नाइट्रोजन के लिए कितना चाहिए होगा, जस्ट यूज यूनिटरी मेथड, दैट इज 164/28. और 200 kg के लिए कितना चाहिए होगा, 164/28 इंटू 200 kg. तो दैट इज इक्वल टू, प्लीज टेल मी योर आंसर इन कमेंट बॉक्स. The next question is, samples of gases O2, N2, CO2 and CO under the same condition of temperature and pressure contain same number of molecules represented by X. The molecules of oxygen occupy V liters and have mass of 8 gram under same temperature and pressure. What is the volume occupied by X molecules of N2, 3X molecules of CO and what is the mass of CO2 in grams. तो ये क्वेश्चंस आपके पास हैं. तो सबसे पहले आपको सैंपल्स दिए हुए हैं O2, N2, CO2 एंड CO के, और उनका क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन क्या है, सेम है, मीन्स उनका टेम्परेचर और प्रेशर सेम होगा. तो आपको क्या दिया हुआ है, उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, X. तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक लॉ ध्यान में रखना है, दैट इज एवोगाड्रोस लॉ. Avogadro's law says that equal volume contain equal number of molecules. तो सबके molecules कितने हैं, X हैं, तो इसका मतलब वॉल्यूम भी सबका क्या होगा, V. तो क्योंकि V किसका वॉल्यूम है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सबके सेम है, तो वॉल्यूम सबका क्या होगा, V ही होगा. तो आपको V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. नाउ यू हैव टू यूज टू लॉज हियर. वन इज एवोगाड्रोस लॉ. एवोगाड्रोस लॉ सेज दैट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इक्वल if the volumes are equal under same temperature and pressure. तो टेम्परेचर और प्रेशर तो यहाँ पे सेम है, तो अगर
वॉल्यूम सेम होंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, एंड वाइस वर्सा, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे तो वॉल्यूम्स भी सेम होंगे। और दूसरा आपको यूज़ करना है मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का अगर जो होता है उसका जो मास होता है वो किसके इक्वल होता है, उसके मोलर मास के। दूसरी चीज़ उसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, दैट इज़ 22.4 लीटर एट STP, ध्यान रखिए। और थर्ड चीज़ जो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो दैट इज़ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स और एटम्स, पार्टिकल्स आप डायरेक्ट लिख सकते हो इनको, कितने इसमें पार्टिकल्स होंगे। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय x मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय x molecules of nitrogen will be same as the volume occupied by x molecules of oxygen. Now, सबसे पहले जो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, तो सबसे पहले हमको 1 मोल जो ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन का मास मुझे पता है, सो दैट इज मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितना होता है, दैट इज 32, 16 इंटू 2, तो मोलर मास क्या हो जाएगा 32 क्या ग्राम। तो इसका मतलब क्या कह सकते हो आप, जो मोलर मास होता है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और यू कैन से वॉल्यूम ऑफ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू जो मोलर मास होता है, मोलर मास कितना है इसका 32 ग्राम है, और उसका मोलर मास का वॉल्यूम कितना होगा, क्योंकि 1 मोल का जो मास होता है वो मोलर मास होता है, और जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है, दैट इज इक्वल टू 22.4 लीटर। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ 8 ग्राम, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन कितना है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, दैट विल बी 22.4 डिवाइडेड बाय 32, क्योंकि अगर 32 ग्राम का जो वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर है, तो 1 ग्राम का कितना हो जाएगा 22.4 डिवाइडेड बाय 32। जस्ट यूनिटरी मेथड आपको यूज़ करना है, यूनिटरी मेथड आप 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। देन 22.4 बाय 32, वो तो 1 ग्राम का वॉल्यूम हो जाएगा, और मुझे 8 ग्राम का कैलकुलेट करना है इंटू 8। सो द आंसर इज 8 4s are 32 एंड योर आंसर इज 5.6 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो होगा 8 ग्राम का जो वॉल्यूम है दैट इज V, सो V इज इक्वल टू 5.6 लीटर। और जो ऑक्सीजन का वॉल्यूम होगा, बिकॉज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर सेम x, सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ x मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, सेम, तो यू कैन राइट द आंसर दैट वॉल्यूम ऑफ x मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5.6 लीटर। तो क्योंकि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है तो वॉल्यूम भी सेम रहेगा, यू हैव टू यूज एवोगैड्रोज लॉ। देन द सेकंड थिंग इज 3x मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इट डजेंट मैटर विच गैस इट इज, सो व्हाट विल यू से, वॉल्यूम ऑफ 3x मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 दैट विल बी इक्वल टू x मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम 5.6 लीटर है, तो 3x मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाएगा, दैट विल बी 3 इंटू 5.6 दैट इज इक्वल टू 16.8 liter. So hope you have understood the solution of this question. Now the next question is, what is the mass of CO2 in grams? CO2 का जो mass होगा in grams वो क्या होगा? So first of all you have to calculate the molar mass of CO2. So let's calculate the molar mass of CO2 first, and then we have to use same relation. So molar mass of CO2 that is equal to 12 plus 16 into 2 that is 32, that is equal to 44 gram. So you can say that मास ऑफ, क्योंकि 1 मोल का जो मास होता है, मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल का मास कितना होता है
44 ग्राम, और 1 मोल का वॉल्यूम क्या होता है, क्योंकि मुझे केवल वॉल्यूम पता है, सो यू कैन से 22.4 लीटर, क्योंकि जो 1 मोल का जो मास होता है वो इतना होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, वॉल्यूम तो सबका ही क्या होता है 22.4 लीटर ऑफ CO2 इज इक्वल टू 44 gram. So what do you have to calculate here? We have to calculate the volume mass of how much liter, that is 5.6 लीटर, क्योंकि सारी गैसेस में x मॉलिक्यूल्स हैं, तो वॉल्यूम सारी गैसेस का क्या होगा, सेम होगा, दैट इज 5.6 लीटर. तो दैट विल बी मास ऑफ 5.6 लीटर ऑफ CO2, दैट विल बी इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू 5.6, क्योंकि अगर 22.4 लीटर का जो मास है वो 44 ग्राम है, तो 1 लीटर का मास क्या हो जाएगा 44 बाई 22.4, और अगर 5.6 लीटर का आप मास कैलकुलेट करना चाह रहे हो, दैट इज 44 बाई 22.4 इंटू 5.6, सो इट विल बी कैंसल्ड, दैट विल बी इक्वल टू 11 ग्राम. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द मोल कॉन्सेप्ट. मोल कॉन्सेप्ट में सिर्फ आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है, द रिलेशनशिप बिटवीन द मास, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो बेसिकली यहाँ पे हमने मास और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप पता की कि जो 1 मोल का जो मास होता है दैट इज 44 ग्राम फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर ऑक्सीजन इट इज 32 ग्राम. नाउ द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल इज 22.4 लीटर. तो आप कह सकते हो कि जो मास होगा 22.4 लीटर का, क्योंकि 22.4 लीटर इज इक्वल टू 1 मोल, तो मास होगा जो 22.4 लीटर का दैट इज इक्वल टू मोलर मास, दैट इज 44 ग्राम. सेम हमने यहाँ पे भी किया था. वॉल्यूम ऑफ 32 ग्राम, 32 ग्राम मीन्स 1 मोल, बिकॉज मोलर मास इज 32 ग्राम. सो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल इज 22.4 liter and 1 mole is equal to 32 gram. So hope you have understood this question. The next question is, a flask contains 3.2 gram of sulfur dioxide. Calculate the number of moles of sulfur dioxide in flask, the number of molecules of sulfur dioxide in flask, and the volume occupied by 3.2 gram of sulfur dioxide at STP. So the first is number of moles of sulfur dioxide in the flask. तो आपको फॉर्मूला पता है नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास. So mass, given mass of sulfur dioxide is 3.2 gram. You have to calculate the molar mass. So molar mass of sulfur dioxide, molar mass of SO2 is equal to sulfur, that is 32, plus oxygen, that is 2 into 16. So 32 plus 32, that is 64 gram. So what is the molar mass of sulfur dioxide? That is 32 gram per mole. So number of moles will be equal to given mass. What is the mass? That is given 3.2 divided by molar mass 64. So that is equal to 2 double 1 by 20. That is 0.05 moles. तो कितने मोल्स होंगे? 0.05 moles. So its answer is 0.05 moles. Now the next is number of molecules of SO2 in the flask. अगेन आपको इसके लिए यूज करना है मोल कॉन्सेप्ट. तो व्हाट डज इट से? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2. सो यूज नो दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 इन 1 मोल. तो आपको पता है 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? दैट इज 6.022 इंटू 10 raised power 23. So similarly, what will be the number of molecules of SO2 in कितने मोल्स हैं हमारे पास? That is 0.05. So you can say 0.05 moles. That will be equal to 0.05 into एक मोल में इतना होता है 6.022 into 10 raised power 23. So that will be equal to 3.011 into 10 raised power 22. So what is the number of molecules in 0.05 moles of sulfur dioxide? That is 3.011 into 10 raised power 22
molecules. Now the last part, the volume occupied by 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. तो आपको पता चल गया कि 3.2 ग्राम में व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स, 0.05. सो अगेन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल, एक मोल में वॉल्यूम क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 22.4 liter at STP. So what will be the volume occupied by 0.05 mole? That will be equal to 0.05 into 22.4. So that will be equal to 1.12 liter. So this is the answer of the question. This is the answer of first part. This is the answer of second part, and this is the answer of third part. The next question that we have here is the volume of gases A, B, C and D are in the ratio 1:2:2:4 under the same condition of temperature and pressure. Which sample of gas contains maximum number of molecules? So we will use which law here, that is Avogadro's law. तो आपको अभी बताया था कि Avogadro's law क्या कहता है, if the temperature and pressure are constant then equal volumes will contain equal number of molecules. तो अगर वॉल्यूम इक्वल होंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. अगर जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे तो वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा. तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है एवोगैड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यू कैन से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम. तो क्या पूछ रहे हैं, which sample of gas contain the maximum number of molecules? So you can see the ratio 1:2:2:4. तो A is to B is to C is to D, जो रेशियो है that is 1:2:2:4. तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसका है यहाँ पे, that is the volume of D. तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी किसके होंगे, D के. तो what is the answer of this, that is D. So D contain the maximum number of molecules. Now let's see the second part. If the temperature and pressure of gas A are kept constant, then what will happen to the volume of A when the number of molecules of A is doubled? So simple है, again same question पूछ रहे हैं कि अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम रखा है और हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स A के डबल कर दिए, तो यहाँ पे अगेन रिलेशनशिप आपको दिख रहा है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो क्या कहता है कि अगर हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डबल कर दिए तो वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डबल हुए तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डबल्ड. सो द आंसर इज वॉल्यूम विल बी डबल्ड. वॉल्यूम ऑफ द गैस A विल बी डबल्ड. नाउ let's see the third part. If the volume of A is actually 5.6 decimeter cube at STP, calculate the number of molecules in actual volume of D at STP. अब D का पूछ रहा है और A का दिया हुआ है. तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि वॉल्यूम आपको A का पता है. What is the volume of A? That is 5.6 decimeter cube. Decimeter cube लीटर को ही कहते हैं. So 1 decimeter cube is equal to 1 liter. Decimeter cube और लीटर दोनों सेम यूनिट होती हैं. Now the volume of A is given. So we will use Gay-Lussac law here. The ratio of volume of A by volume of D is equal to 1:4. So volume of A is equal to 5.6 decimeter cube. So 5.6 by volume of D is equal to 1/4. So volume of D into 1, or you can say volume of D will be equal to 5.6 into 4. So that is equal to 22.4 liter. Now this is the volume of gas D, that is 22.4 liter. Now the question is asked, what is the number of molecules in actual volume of D? तो D का वॉल्यूम आपको पता चल गया 22.4 लीटर. Now fortunately 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है 1 मोल गैस का. इट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D is 1.
तो और 1 मोल में पार्टिकल्स आपको पता है तो कितने होते हैं, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसका मतलब 22.4 लीटर में पार्टिकल्स कितने होंगे, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। एंड द सेम क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो यू कैन से दैट नंबर ऑफ molecules of D in 22.4 liter, that is equal to 6.022 into 10⁻23, क्योंकि 22.4 लीटर इज इक्वल टू 1 मोल और 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। अगर यहीं पे वो D की जगह A का पूछता कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस A, तो सबसे पहले हम क्या करते 5.6, क्योंकि हमको वॉल्यूम दिया हुआ है डेसीमीटर क्यूब। नाउ दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान में रखना था कि जो 22.4 लीटर जो होगा ए का, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर 1 लीटर होगा तो 1 लीटर में कितने हो जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 22.4 और 5.6 में क्या हो जाएंगे इंटू 5.6। तो वही आपको यूनिटरी मेथड बार बार यूज़ करना है। तो होप कि ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। नाउ द लास्ट पार्ट, स्टेट द मास ऑफ D इफ इट इज NO2। तो क्योंकि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं D के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D दैट इज इक्वल टू 1, एक ही मोल है। नाउ मोलर मास, तो मोलर मास ऑफ D है क्या एक्चुअल में NO2, सो दैट विल बी इक्वल टू 14 प्लस 2 इंटू 16 दैट इज 32 प्लस 14 that is equal to 46 gram. So molar mass, the mass of 1 mole is equal to molar mass. तो mass of D क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 mole ही है, that is equal to 46 gram. So this is it. The next question is calculate the number of moles and the number of molecules present in 1.4 gram of ethylene. What is the volume occupied by same amount of ethylene at STP and what is the vapor density of ethylene. तो पहले फर्स्ट पार्ट हम इसका देख लेते हैं, दैट इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1.4 ग्राम ऑफ इथाइलिन। तो सबसे पहले वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सो वी हैव टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ ethylene and that is equal to, what is the formula of ethylene, that is C2H4. So what will be the molar mass, that will be 2 into 12 plus 4 into 1, that is 12 into 2 24 plus 4 28 gram. So what will be the number of moles, number of moles will be equal to mass, that is 1.4 divided by 28, so that is equal to 1 by 20, again 0.05. Now the second question is being asked, what is the number of molecules. So you know that what is the number of molecules in 1 mole, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मोल में मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.022 into 10⁻23 and we have 0.05 moles. So we will say that number of molecules of ethylene in 0.05 mole. So that is equal to 0.05 into 6.022 into 10⁻23. So that is equal to 3.011 into 10⁻21. Now the next question is, what is the vapor density of ethylene. So what is the vapor density of ethylene, what is the formula for vapor density, vapor density is equal to molecular mass of the gas divided by the molecular mass of hydrogen gas, that is 2. So what is the molecular mass of C2H4, that is equal to numerically equal to molar mass 28 by 2. So this is 14. वेपर डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आप इजीली
कैलकुलेट कर सकते हो वेपर डेंसिटी। नाउ वन मोर क्वेश्चन दैट वी हैव लेफ्ट इन फर्स्ट पार्ट, दैट इज व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सेम अमाउंट ऑफ इथाइलिन एट एसटीपी। तो जरा इसको भी हम देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कितना मोल था हमारे पास, 0.05 मोल ऑफ इथाइलिन। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एक मोल का जो वॉल्यूम होता है दैट इज 22.4 लीटर, तो 0.05 मोल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.05 इंटू 22.4 लीटर एंड दैट विल बी इक्वल टू 1.12 लीटर। सो होप यू हैव अंडरस्टूड द आंसर ऑफ these questions. The next question is, a gas cylinder of capacity 20 decimeter cube is filled with gas X, the mass of which is 10 gram. When the same cylinder is filled with hydrogen gas at same temperature and pressure, the mass of hydrogen is 2 gram. What is relative molecular mass of gas X? तो यहाँ पर आपको बहुत इजी क्वेश्चन मिला है, लेकिन आपको सिर्फ एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, वो है वेपर डेंसिटी का। तो इस क्वेश्चन का जो पूरा लिंक है वो सिर्फ और सिर्फ वेपर डेंसिटी के फॉर्मूले के साथ है। तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेपर डेंसिटी, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ अ गैस बाय मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। जनरली यूज़ नहीं होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हम यूज़ कर रहे हैं। और यही जो फॉर्मूला है यही किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। तो बस आपको मास ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, तो आपको बताया गया है कि एक सिलेंडर है जिसकी कैपेसिटी 20 डेसीमीटर क्यूब है, मींस 20 लीटर है। तो अगर उसमें आप किसी गैस को रखते हो तो उसका मास 10 ग्राम होता है, और अगर हाइड्रोजन को रखते हो तो उसका मास 2 ग्राम होता है। तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा दोनों का। तो यहाँ पे मास ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ द गैस वो कितना दिया हुआ है, दैट इज 10 ग्राम। तो फॉर्मूले में रखिए 10 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस का मास कितना है, 2 ग्राम। सो डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। तो वो मुझे नहीं पता, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। तो वो कितना होता है, दैट इज ऑल्सो 2। जस्ट कैंसिल कीजिए 2 2, तो आ गया ना रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। कौन सी गैस थी हमारे पास, X, दैट इज इक्वल टू 10। तो बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। बट आपको बेसिक फॉर्मूला जो है वेपर डेंसिटी का, दैट इज मास ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये तो है ही फॉर्मूला, दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। बट उसके साथ साथ आपको ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे यही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। Now the next question is, a gas cylinder contains 24 into 10 raised power 24 molecules of nitrogen gas. If Avogadro's number is 6 into 10 raised power 23, calculate mass of nitrogen gas in cylinder, volume of nitrogen gas at STP. तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, number of molecules of नाइट्रोजन गैस। क्या है उसमें, नाइट्रोजन गैस है, और मॉलिक्यूल्स कितने हैं नाइट्रोजन गैस के, दैट इज 24 इंटू 10 रेज़्ड पावर 24। और एवोगाड्रोस नंबर आपको क्या दिया हुआ है, 6 इंटू 10 रेज़्ड पावर 23। आपको पता है एवोगाड्रोस नंबर किसको बोलते हैं, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल। तो जनरली दैट इज 6.022, बट हमने इसको राउंड ऑफ करके 6 इंटू 10 रेज़्ड पावर 23 क्वेश्चन में दिया गया है, तो हमको यही वैल्यू अभी लेनी पड़ेगी। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल, तो यू कैन से 6 इंटू 10 रेज़्ड पावर 23 मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनमें कितने मोल्स होंगे, 1 मोल, राइट। 6 इंटू 10 रेज़्ड पावर 23 मॉलिक्यूल्स में 1 मोल होगा, क्योंकि वही एवोगाड्रोस नंबर होता है, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल। तो 1 मोल इज इक्वल टू 6 इंटू 10 रेज़्ड पावर 23 मॉलिक्यूल्स, और यू कैन से 6 इंटू 10 रेज़्ड पावर 23 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 1 मोल। तो 1 मॉलिक्यूल में कितने मोल्स हो जाएंगे, 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1/6
6 इंटू 10⁻23 मोल्स। लेकिन हमारे पास टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 24 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स। इनमें कितने मोल्स होंगे? तो आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज 1/6 इंटू 10⁻23 इंटू 24 इंटू 10⁻24 मोल्स। तो 6 4s are 24, then 23, 24 cancel, only 10 will remain, and that is 40. So there will be 40 moles. तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? मास ऑफ नाइट्रोजन गैस इन सिलेंडर। तो मास ऑफ नाइट्रोजन गैस कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप? मास ऑफ नाइट्रोजन गैस दैट विल बी इक्वल टू, तो 1 मोल का जो मास होगा उसके लिए हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? मोलर मास। तो पहले आप मोलर मास कैलकुलेट कर लीजिए। मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस N2 दैट इज इक्वल टू 28 ग्राम। सो मास ऑफ नाइट्रोजन गैस, तो मास कितना होगा? 1 मोल का मास कितना होता है? 28 ग्राम होता है। तो टोटल मास कितना हो जाएगा? दैट इज नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 40। तो 40 मोल्स का मास कितना हो जाएगा? दैट इज 40 इंटू 28 ग्राम्स, दैट इज इक्वल टू 40 into 28. So that is equal to 112 gram. So the mass of nitrogen gas is 112 gram. दूसरा क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है? वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस एट STP। नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम क्या होगा एट STP? सो यू नो दैट व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ What is the volume of 1 mole of nitrogen gas at STP? That is 22.4 liters. So what will be the volume of 40 moles? That will be volume of 40 moles of nitrogen gas. That will be 40 into volume of 1 mole. 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4. So that is equal to 896 लीटर। तो होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। The next question is, a gas X occupies a volume of 100 centimeter cube at STP and weighs 0.5 gram. Find its relative molecular mass. तो आपको पता है किसी भी गैस का जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होता है वो उसके मोलर मास के इक्वल होता है न्यूमेरिकली। हाउएवर यूनिट्स आर डिफरेंट। तो अगर हमको मोलर मास पता चल गया तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास तो पता चल ही जाएगा। एंड मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल। 1 मोल का वॉल्यूम क्या होता है? 22.4 लीटर। 22.4 लीटर, क्योंकि आपको पता है 1 लीटर में 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब? दैट इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। So it means 22.4 liters. So 22.4 liter will be equal to 22400 centimeter cube. तो 22400 centimeter cube, that is the volume of 1 mole. तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 1 मोल का वॉल्यूम होता है अगर आप सेंटीमीटर क्यूब में लिखोगे, और लीटर में 22.4 लीटर। नाउ द क्वेश्चन इज आस्क्ड, द वॉल्यूम ऑफ गैस इज 100 सेंटीमीटर क्यूब। जो एक्स का वॉल्यूम है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है, एंड उसका जो वेट है दैट इज 0.5 ग्राम। सो यू विल से दैट मास ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस that is equal to 0.5 gram. So what will be the mass of 22400 centimeter cube of the gas? That will be equal to 0.5 by 100 into 22400. ध्यान रखना, आपको अगेन यूनिटरी मेथड फॉलो करना है। 100 सेंटीमीटर क्यूब का मास जो होगा दैट इज 0.5, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना होगा? 0.5 डिवाइडेड बाय 100। तो 22400 का मास क्या होगा? 0.5 बाय 100 इंटू 22400। आप इसको कैंसिल कर सकते हो। 100 दैट इज इक्वल टू 0.5 इंटू 224 दैट इज इक्वल टू 112 ग्राम। सो दिस इज द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, बिकॉज जो 22400 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास होगा मोलर मास के इक्वल होगा, और मोलर मास न्यूमेरिकली किसके इक्वल होता है? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 112 AMU। तो होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
A gas cylinder can hold 1 kg of hydrogen at STP. Find the number of moles of hydrogen present. तो किसी भी गैस सिलेंडर में कितना 1 kg हाइड्रोजन है, तो आपको पता करना है कि कितने मोल्स उसमें हाइड्रोजन के होंगे। तो सबसे पहले 1 kg हाइड्रोजन के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन दैट इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास। मास आपको हाइड्रोजन का दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 1 kg, लेकिन हम मास हमेशा किस में लेते हैं, ग्राम में। सो प्लीज कन्वर्ट इट इनटू ग्राम दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 2, सो 1000 बाय 2 दैट इज 500। सो नंबर ऑफ मोल्स इज 500। तो हाइड्रोजन के कितने मोल्स होंगे, 500 मोल्स। So it was easy part. The next is, what weight of carbon dioxide can the cylinder hold under similar condition of temperature and pressure? तो you know that the number of moles will be same, क्योंकि अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो इक्वल वॉल्यूम्स विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे तो मोल्स तो इक्वल होंगे ही। तो आपको क्या करना है, आपको नंबर ऑफ मोल्स क्या रखना है, सेम रखने हैं। तो व्हाट विल बी द वेट ऑफ CO2? तो सबसे पहले मोलर मास कैलकुलेट करना है आपको, मोलर मास। सो दिस वन वाज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट। मोलर मास ऑफ CO2 दैट इज इक्वल टू 12 प्लस 32 इक्वल टू 44 ग्राम। सो दैट इज द मास ऑफ 1 मोल। मोलर मास मतलब क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल। तो ये 1 मोल का मास है। और आपके पास कितने मोल्स होंगे, क्योंकि सिलेंडर कितना होल्ड कर सकता है, चाहे वो कोई भी गैस हो, उसके 500 मोल्स होल्ड कर सकता है। सो व्हाट विल बी द मास ऑफ 500 moles of CO2? So that will be equal to 44 into 500. So that will be equal to 22000, 22,000 gram, or you can say that is equal to 22 kg. तो आपको मास पता चल गया, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। एंड द थर्ड क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इन द सिलेंडर इज x, कैलकुलेट द नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स इन द सिलेंडर अंडर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सेम क्वेश्चन है कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर में कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो आपको पता है कि जितने मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के होंगे उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड के भी होंगे। दैट इज the Avogadro's law. Under similar condition of temperature and pressure, the equal volumes will contain equal number of molecules. तो molecules तो दोनों के सेम रहेंगे, और number of moles दोनों के क्या हैं, 500 हैं। तो number of moles से आप number of molecules कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? So the number of molecules of carbon dioxide will be equal to, now what is the number of molecules in 1 mole? That is 6.022 into 10 raised power 23. This is the number of molecules in 1 mole. लेकिन हमारे पास कितने मोल्स हैं, दैट इज 500। तो इंटू क्या कर देंगे, 500। प्लीज टेल मी द आंसर इन कमेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मास ऑफ 11.2 liters of a gas at STP is 24 ग्राम। फाइंड द मोलर मास और ग्राम मॉलिकुलर मास। ध्यान रखना, मोलर मास को ग्राम मॉलिकुलर मास भी बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है मॉलिकुलर मास और मोलर मास की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है। डिफरेंस क्या होता है, इसको हम ग्राम में मेजर करते हैं और इसको AMA में। तो अगर हम ग्राम मॉलिकुलर मास बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, मोलर मास ही होता है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोलर मास। तो आपको पता है मोलर मास कितने का मास होता है, दैट इज द मास ऑफ 22.4 लीटर, क्योंकि 22.4 लीटर इज इक्वल टू 1 मोल, और ऑल्सो मोलर मास इज इक्वल टू द मास ऑफ 1 मोल। तो हमको सबसे पहले मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो दैट विल बी द मास ऑफ 22.4 लीटर। तो हमको मास ऑफ 11.2 लीटर पता है। मास ऑफ 11.2 लीटर ऑफ गैस इज इक्वल टू 24 ग्राम। सो व्हाट विल बी द मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैस, दैट विल बी 24 अपॉन 11.2। 24 डिवाइडेड बाई 11.2, ये किसका होगा, 1 लीटर का, और 22.4 लीटर का क्या होगा, इंटू 22.4। सो दैट विल बी इक्वल टू 11.2 डबल, दैट इज इक्वल टू 48
ग्राम, तो ये हमेशा ग्राम में ही आएगा। तो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वे द लीस्ट। तो जनरली आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि किसका वेट सबसे ज़्यादा है या किसका वेट सबसे कम है, या फिर आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो सबसे पहला आपके पास है 2 ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो इसका तो वेट आपको दिया हुआ है, द मास इज 2 ग्राम। ओके, द सेकेंड इज 1 मोल ऑफ सिल्वर। तो 1 मोल का जो मास होता है दैट विल बी इक्वल टू द मोलर मास, और सिल्वर का मोलर मास होता है 108। तो इसका मास क्या हो जाएगा 108 ग्राम। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसका मोलर मास या एटॉमिक मास क्वेश्चन में दिया होगा, तो क्वेश्चन में दिया होगा दैट इज 108 ग्राम। तो द मोलर मास ऑफ सिल्वर इज 108 ग्राम, तो 1 मोल का मास कितना होगा 108 ग्राम। थर्ड दैट इज 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट 273 केल्विन एंड 1 atm, दैट इज STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 22.4 लीटर ऑक्सीजन दैट इज 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, और 1 मोल ऑक्सीजन का जो मास होगा दैट विल बी 32 ग्राम। और लास्ट आपके पास है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, दैट मेक्स 1 मोल। 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं इतने, और 1 मोल एटम का मास कितना होगा कार्बन का, दैट विल बी 12 ग्राम। तो होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब आप बता सकते हो किसका वेट सबसे कम होगा, दैट विल बी नाइट्रोजन, और अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाता दैट इज सिल्वर। The next question is calculate the mass of calcium that will contain the same number of atoms as present in 3.2 ग्राम of sulfur। तो ये कह रहा है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, मास ऑफ कैल्शियम कितना, जितने नंबर ऑफ एटम्स अगर उसके सेम होंगे, किसके सेम एज 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर। तो जितने एटम्स सल्फर के 3.2 ग्राम्स में होंगे कैल्शियम के, उतने ही एटम्स का मास क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए अगर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होंगे तो नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल होंगे। तो हम पहले सल्फर के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर। सो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर दैट इज मास बाय मोलर मास। तो मास क्या होता है सल्फर का, दैट इज वो गिवन है 3.2 ग्राम बाय मोलर मास। मोलर मास है सल्फर का 32, तो वो हो गया 0.1 मोल। तो 0.1 मोल कैल्शियम का आपको मास कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है मोलर मास ऑफ कैल्शियम दैट इज इक्वल टू 40 ग्राम। तो मास ऑफ 0.1 मोल ऑफ कैल्शियम दैट विल बी इक्वल टू, एक मोल का मास कितना होता है 40 ग्राम, तो 0.1 मोल का कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 40 दैट विल बी इक्वल टू 4 ग्राम। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16. Now the answer of question number 17. So how to solve it? Calculate the volume of 322 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट STP. तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप रिलेशनशिप स्टेब्लिश करो किसके बीच में, वॉल्यूम और मास के बीच में, या फिर आप दूसरे तरीके से करो। पहले आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लो, और आपको पता है एक मोल का जो वॉल्यूम होता है दैट इज 22.4 लीटर, तो जितने भी मोल्स आएंगे आप वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम नंबर ऑफ मोल्स वाले तरीके से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हो। तो मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ कि आपको क्या दिया हुआ है, 320 ग्राम ऑफ SO2 एट STP। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2, सो दैट इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास। तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ बार बार, मास कितना दिया हुआ है 320 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास होता है सल्फर डाइऑक्साइड का, आप कैलकुलेट कर लीजिए, मोलर मास इज इक्वल टू 32 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू 64। तो यहाँ पे क्या आएगा 64, सो दैट इज इक्वल टू 5। तो 5 मोल आ गए। अब क्या पूछा गया, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 320 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं 5, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 5 मोल्स और 320 ग्राम दोनों सेम ही है, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 22.4, सो दैट इज इक्वल टू 112 लीटर।
अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 1 मोल का जो मास होता है दैट इज मोलर मास। तो आप कह सकते हो वॉल्यूम ऑफ 64 ग्राम, क्योंकि 64 ग्राम मीन्स 1 मोल ऑफ SO2 दैट इज इक्वल टू कितना होगा 22.4 लीटर। तो आप यहाँ पे सिर्फ यूनिटरी मेथड यूज करोगे। तो वॉल्यूम ऑफ कितना ग्राम है अब हमारे पास, दैट इज 320 ग्राम। तो 320 ग्राम ऑफ SO2 दैट विल बी इक्वल टू 22.4 बाय 64। ये तो 1 ग्राम का वॉल्यूम हो जाएगा इंटू 320। अगेन आपका आंसर आ जाएगा 112 लीटर। तो आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ कीजिए, या तो आप पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कीजिए और फिर आप क्या कैलकुलेट कीजिए, वॉल्यूम कैलकुलेट कीजिए उतने मोल्स का, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड मास ऑफ एनी सब्सटेंस। चलिए अब इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर, दैट इज कैलकुलेट द मास ऑफ 10⁻22 atoms of sulfur. So what is the number of atoms in 1 mole? The number of atoms in 1 mole is 6.022 into 10⁻23. So you can say mass of 6.022 into 10⁻23 atoms of sulfur. This is sulfur is equal to 32 ग्राम, क्योंकि ये क्या है सल्फर है। तो सल्फर का मोलर मास 6.022 इज 1 मोल, 32 ग्राम इज ऑल्सो 1 मोल। तो आपको कितने एटम्स का मास पूछा है, मास ऑफ कितने एटम्स का पूछा है 10⁻22 एटम्स। सो दैट विल बी इक्वल टू, तो सबसे पहले एक एटम का मास कैलकुलेट करना है। तो जो मोलर मास होता है वो कितने का है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास है। तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा, तो अगर इतने एटम्स का मास ये है तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा, दैट इज 32/6.022 इंटू 10⁻23। ये तो एक एटम का मास हो गया, लेकिन आपको 10⁻22 एटम्स का मास कैलकुलेट करना है। तो आप क्या हो जाएगा मास ऑफ 1 एटम इंटू 10⁻22। तो आप प्लीज़ इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड द लास्ट वन दैट इज 0.1 मोल ऑफ CO2। तो दिस इज़ वेरी इजी। तो सबसे पहले आप CO2 का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, वो आपको पता है दैट इज 44। तो मास ऑफ 1 मोल इज 44। तो मास ऑफ 0.1 मोल दैट इज 0.1 इंटू 44। सो प्लीज़ गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स. So this is the end of the video. If you have any queries, you can ask your questions in the comment box. Thank you very much.